वी आर गोइंग टू हैव 4 एंगल्स हियर एंड दैट इज दिस थिंग इज ऑब्वियस कि यहाँ पे ये एंगल जो बिल्कुल ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो बिल्कुल आपस में इक्वल होंगे. दिस विल बी इक्वल टू दी this angle and this would equal to this angle. The opposite angles will be the equals. So if you see here, if I look at it carefully, I can see that there are two pairs of opposite angles. एक क्या पेयर हमारे पास है अगर हम इसको reclean करें. If we see this B degree is opposite to 40 degree. इस बात से मुझे पता चला कि बेसिकली B डिग्री की वैल्यू क्या होगी. My B degree is basically 40 degree as ब्रैकेट में आप बताएंगे A degree B degree is equals to 40 degree. Why? Because vertically opposite angles are equal. You may just ignore this part again, you don't have to write it again, but you have to write this statement. I will be writing it this way so that we can see the diagram clearly. So here if you see, I have written the statement about it. Remember, you cannot, our answers will not make any sense if they have no statements. Okay, so here I have B is equals to 40 degree. तो मुझे ये बात clear होगी कि अगर ये भी 40 degree है, if this is 40 degree then this is also 40 degree. Now my next question or my next problem is I need to find C and A. I know because A is opposite to C, so A will be also equal to C degrees. But problem ये है कि अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी degrees given in terms, यहाँ पे मेरे पास कोई degrees given नहीं है, तो यहाँ पे I will not know what is C degrees. So pause the video for a minute and think how can I find any of these. क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पे A को फाइंड कर ले तो हमारे पास C आ जाए, या हम C को फाइंड कर ले तो हमारे पास A आ जाए. So pause the video for a minute and then let me know the answers. So I hope it's everybody has thought about it. So if you see, we have lines, we have two lines intersecting. एक तो ये लाइन है और एक हमारे पास ये लाइन. इससे पहले कि मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करूँ, सबसे पहले हम इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. फाइन, लेट्स सपोज यही लाइन है, इसको मैंने उठा के यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. तो अगर देखा जाए तो हमारे पास इस लाइन पे इसका एक पार्ट गिवन है, मुझे इसका एक पार्ट पता चल गया है, मैं इसको हाफ वे ड्रॉ कर रही हूँ. और वो कितना पार्ट है, दैट इज़ बेसिकली 40 डिग्री. और वो कुछ और नहीं, किसकी वैल्यू है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ B. और मेरे पास जो इसका दूसरा पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, बेसिकली C डिग्री. सो इफ़ यू गाइस सी दिस पिक्चर, मैंने सिर्फ अभी क्या लिया, मैंने सिर्फ इस पार्ट को लिया, इस अपर वाले पार्ट को ले लिया, मैंने दूसरे पार्ट को भी इग्नोर किया. सो इफ़ यू सी, इफ़ वी रिमेंबर दैट इट इज़ नथिंग बट these two angles show angles on a straight line. और हमें पता है कि angles on a straight line all together add up to how many degrees? They add up to basically 180 degrees. Angles on a straight line add up to how many degrees? Angles on a straight line add up to 180 degree. तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि कुल मिलाकर कितने डिग्रीज बनने वाले, 180 degrees बनने वाले. So what I'll do is that I will write it this way, like C plus 40 degree, we have done this all earlier, is equals to, let me rub this part off. So C plus 40 degree is equals to 180 degree. So C degree I will isolate this part, मुझे C को फाइंड करना है. 40 वहाँ जाएगा, यहाँ पे प्लस था, वहाँ पे गया तो क्या हो गया, 180 minus 40, and we know that our answers will be C is equals to how much, 140 degrees. So we have got the value of C. हमें अब मालूम हो गया कि कितना है हमारे पास. दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ 140
डिग्री। अगर हम वापस इस डायग्राम में आए तो हमने इस लाइन के थ्रू, तो हमने बेसिकली इस लाइन के थ्रू क्या किया है, we have found out the 40 degree, we already knew the 40 degree, and then we have found out the value of this C, that is basically how much, that is 140 degrees. तो अगर देखा जाए तो ये C जो है ऑपोजिट है किसके, बिल्कुल किसके ऑपोजिट, इज ऑपोजिट टू A, और हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इफ़ A इज, सो इफ C डिग्री इज 140 डिग्री, so our A will also be equal to 140 degrees. Why? Because vertically opposite angles are equal. So we know that vertically opposite angles are equal, and I hope it's clear to everybody. So let's move on to the next part. We'll be getting to our book. So everyone open the books. It's on page number 240. Page number 240. So now, in the previous class I already explained you guys what basically vertically opposite angles are. Inshallah I'll be telling you guys how to do work example number 3. So everyone please take out your books. So here it is. In work example number 3 the question is given to us in the figure AOB. So I have told you guys जब भी आप लोगों को कोई angles नोट करने के लिए दिया जाए तो हमेशा फिंगर्स इस्तेमाल करें. So here A, O and B, A O B और C और D जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन. सो A O B and C O D are two straight lines. They are crossing one another. They have told us that B O E is 56 degree. कह रहे कि B O E की वैल्यू कितनी है, 56 डिग्रीज है. आई एम गोइंग टू मेक इट अ बिट डार्कर हियर. 56 डिग्रीज है. इसके अलावा C O और E की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ बेसिकली 81 डिग्रीज. वी हैव टू कैलकुलेट बेसिकली व्हाट A O D इज. सो A O D की वैल्यू फाइंड करनी कि A O D क्या होगा हमें फाइंड करना है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट A O and C. सो वी नीड टू कैलकुलेट A O and C. दिस इज़ माई 2 टास्क. इससे पहले अपना काम स्टार्ट करें, आई विल जस्ट क्लियर द स्क्रीन अगैन सो दैट इट्स क्लियर टू एवरीबडी. सो व्हाट आई विल डू इज़ दैट एज वी डूइंग बेसिकली हमें पता है कि जब भी दो लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं तो वहाँ पे हमेशा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं. और क्योंकि दो स्ट्रेट लाइंस क्रॉस कर रही हैं, आपस में क्रॉस करें तो हर एक स्ट्रेट लाइन पे कितनी डिग्री से एंगल होता है, वहाँ पे 180 डिग्रीज का एंगल मौजूद होता है. तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट आई विल लुक एट दिस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो इफ आई ड्रॉ अ लाइन हियर, so basically this is my first straight line and this is the other straight line. मुझे पता है कि मेरी हर स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल होता है. मेरी हर एक स्ट्रेट लाइन पे we have an angle of 180 degrees. So please keep this in your mind. और जब हम दोनों को क्रॉस करेंगे, और जब हम दो लाइन्स को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास दो एंगल्स बनते हैं. एक basically the two angles are vertically opposite angles. So first what I'll do is that first I will look for the vertically opposite angles here. Ignoring all the angles, पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इन दो लाइंस के दरमियान कौन सी दो एंगल्स होंगे जो वर्टिकली ऑपोजिट होंगे. तो अगर देखा जाए तो एक मेरे पास ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, ये एक पेयर जो होगा ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट होंगे क्योंकि दोनों एंगल्स आपस में ऑपोजिट भी है, वर्टिकल भी है. और इसके अलावा अगर देखा जाए सो वी विल बी हैविंग दिस एंड दिस एंगल एज आवर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो अगर देखा जाए एक तो ये पेयर होगा और एक ये पेयर होगा. अगर अब हम इन सब को हटा के इफ़ आई जस्ट रिमूव ऑल ऑफ द ड्राइंग, सो दिस शोज बेसिकली कि अगर हम तमाम एंगल्स को हाईलाइट करना हटा दें तो इफ़ यू सी कि एक तो मेरे पास ये पेयर और ये पेयर वर्टिकली ऑपोजिट है,
जो कि अगर देखा जाए